سامعین، اس وقت سوشل انڈیا نیوز کے دفتر میں جامعہ خیر النساء سونی پت کے محتمم حضرت مولانا جمشید علی ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ اس نامہ نگار نے ہریانہ میں تعلیم نسواں کے تعلق سے بچیوں کی پڑھائی لکھائی کے تعلق سے ایک تفصیلی انٹرویو مولانا سے لیا ہے جو پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم سامعین، 14 ذی القعدہ اور 5 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے تعلیم نسواں برائے ہریانہ۔ یہ عنوان اس لیے ہے کہ آپ ملک بھر میں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، عالمہ بناتے ہیں، ہائی اسکول کراتے ہیں، انٹر کراتے ہیں، دینیات سکھاتے ہیں، اس کی صورتحال کچھ اور ہے۔ اور تقسیم وطن کے بعد جو ہریانہ آباد ہوا ہے، جس سے اجڑا دیار آباد ہوا ہے اور دوبارہ اجڑ کر گھر بسے ہیں اور لوگ مزدور کی جیسی حیثیت میں رہتے ہیں، ان کی بچیوں کو تعلیم دینے کی بات کچھ اور ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ اس وقت میں ہمارے ہاں دفتر میں ریاست ہریانہ کے شہر سونی پت کے رہنے والے اور وہاں دینی ادارہ ہے جامعہ خیر النساء، اس کے محتمم حضرت مولانا جمشید علی ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ آپ ماشاءاللہ جہاں عالم دین ہیں، وہیں آپ روحانی اعتبار سے خلیفہ مجاز بھی ہیں، بیعت ارشاد کا حامل ہیں۔ اور تیسری ایک اچھی بات یہ ہے جو عام طور سے کم پائی جاتی ہے کہ آپ گاؤں در گاؤں جا کر سماجی اصلاحات کا، سماج سدھار کا کام کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پنچایتیں کرتے ہیں، گھیروں میں، نیم کے پیڑ کے نیچے اور کہیں جھونپڑیوں میں، اور اس طرح چھپر کے نیچے لوگوں کو بٹھا کر وہ چھوٹی چھوٹی پنچایتیں کیا کرتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی پنچایتیں اتنا ایک بڑا ایک کارنامہ انجام ہوتا ہے جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ مولانا کا ادارہ ہے اور چونکہ ہریانہ میں ہے، اسی اعتبار سے ہمارے سوال ہوں گے ان سے۔ مولانا، ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا ادارہ جامعہ خیر النساء ہے، آپ نے لڑکوں کا ادارہ نہیں بنایا ہے، کیا وجہ کہ آپ کا دھیان ایک دم لڑکیوں کی طرف کیا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم دے، کیا وجہ سے؟ ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کی طرف جائے نہیں ہے۔ عید گاہ کالونی میں جو ایک ادارہ اس ٹائم جو ہے جامعہ شیخ احمد سرندی کے نام سے ہے، یہ تقریباً 1987 میں ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں ہمارے ذمہ دار ہوتے تھے قاری امید علی صاحب۔ تو جب تک ہمارا تعلیم نسواں کی طرف ذہن نہیں تھا تو اس ٹائم جو ہے مخلوط تعلیم تھی، پرائمری تھی اور حفظ کی درسگاہیں تھی۔ تقریباً برسات کے موسم میں پہلا سفر حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی دامت برکاتہم کا جو ہے اکتوبر کے مہینے میں ہوا، برسات کے موسم میں۔ اور اس کے بعد جو ہے دیہات کی فکر لے گئی، حضرت مولانا علی میں نور رحمۃ اللہ نے جو ہے ہمیں بھیجا تھا۔ اور اس ٹائم جو ہے کشیروا گاؤں کے ایک مولانا اکبر صاحب ہوا کرتے تھے، پہلے سفر میں وہ ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ہی حضرت مولانا علی میں کو خط لکھا تھا اور بار بار خط لکھتے تھے۔ اور اس وجہ سے جو ہے حضرت مولانا کلیم صاحب اس ٹائم جو ہے ندوے میں جو ہے زیر تعلیم تھے۔ تو جب یہ مشورہ ہوا تو جیسا کہ ہمیں حاجی عبدالرزاق صاحب نے بتایا کہ مشورے میں یہ تجویز آئی کہ بھائی کلیم صاحب کو وہاں بھیج دیں، وہ قریب ہیں۔ تو جب مولانا کلیم صاحب وہاں تشریف لائے پہ 90 کی بات ہے، تو وہ جو ہے پہلے تو دیہات میں ادھر ادھر گھومتے رہے، اور سونی پت کا فیصلہ ہوا کہ مرکزی اسی ادارے کو بنایا جائے۔ اس ٹائم اس کا نام قاسم العلوم تھا۔ تو مولانا کلیم صاحب جو ہے اس نظام کو لے کے آئے تھے۔ اس ٹائم جو ہے فخر النساء کے نام سے جو ہے پولت میں ایک ادارہ چلتا تھا، اور جب یہ سونی پت شہر کے ذمہ داروں نے یہ جگہ جو ہے کلیم صاحب کو سونپ دی، تو وہ میرے پاس موجود ہے نقشہ جو لے کے آئے تھے اس ٹائم، تو اس میں بھی جو ہے لڑکیوں کا جو ہے تعلیم کا جو ہے الگ سے نظام رکھا گیا تھا اور لے کے آئے تھے۔ وہ ادارہ ہم نے اس ٹائم شروع نہیں کر پائے تھے۔ 2001 میں جو ہے ہم نے یہ ادارہ شروع کیا، اور وہ مختلف کرائے کے مکانوں میں چلتا رہا بڑی دشواری کے ساتھ۔ 2005 میں تقریباً مئی میں ہم نے جہاں یہ جگہ ہے خریدی گئی، اور 4 اگست 2006 میں جو ہے یہ باقاعدہ اپنی جگہ میں شروعات کی گئی۔
ऐसे पहले जो है ये शुरू किया गया था, लेकिन किन्हीं हालात की वजह से ईदगाह कॉलोनी के ग्राउंड के अंदर था, तो वो लोगों में सहमति नहीं बन पाई थी। तो क्या उस टाइम जो है हम लखनऊ में थे और ये मौलाना कलीम साहब जो है तालीम इस्वा का जो है निजाम लेकर वो आए थे। फर्क इतना था कि हमने जो है, क्योंकि पता नहीं क्यों अल्लाह की तरफ से जब हम 8वीं-9 में थे, तो उस टाइम से हमारे ध्यान में ये बात थी कि भाई इदारे जो है मुसलमानों को ऐसे इदारे कायम करने चाहिए कि जिससे दोनों तालीम जो है, असली तालीम भी और दीनी तालीम भी एक ही छत के नीचे हो। और इसी वजह से जो है हमने एक भी दिन इसका नियमों का तज़किरा है, वहाँ प्राइमरी से ही हमने ये जो है ये काम शुरू किया था। नीम के नीचों का दिन का जो है वो जामिया शेख अहमद सरंदी के उसमें भी है, और मौलाना कलीम साहब ने कई मतलब कहा भी है कि भाई वो जो है नीम के नीचे इदारा शुरू किया था। तो दोनों तालीम का जो है हम निजाम लेकर शुरू से चले थे। अल्लाह की तरफ से कुछ मंजूर था, और करीम अली साहब का भी खुद ये जानता है कि दोनों तालीम हमारे पास होनी चाहिए। तो ये निजाम हमारा नहीं था जब तक हमारा जो है ये नहीं था। ये मौलाना करीम साहब ने कहते हैं कि तालीम निस्बा होनी चाहिए और उसका अलग से इदारा, ये थी। आप तालीम क्या देते हैं? मौलाना हमारा जैसे कि हमने बताया कि हमारा विचार है भी है कि हमारे बच्चे दीन में रहते हुए दुनियावी तालीम में ना पिछड़े। तो हमारा मुस्तकिल बराबर ये मेहनत है कि भाई हम जो है बच्चों को ऐसी तालीम किसी भी तरह इस तरह करें कि दोनों उससे जो है किसी एक तालीम में ना रहे, दोनों तालीम उसके पास हो, ताकि वो दुनिया में अपने आप को जो है कमतर न समझे। तो एक तो ये बात, दूसरी ये है कि जरिया मास का भी मसला है, लेकिन जरिया मास से ज्यादा ये है कि दोनों ही तालीम हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम कामयाब, हमारे बच्चे कामयाब रहे। जो परेशानी हमारे सामने रही वो हमारे बच्चों की ना रहे। क्या पढ़ाते हैं बच्चे, क्या बनती है बच्चे की जी, जैसे कि दूसरे इदारे हैं लड़कियों के लगभग 19-20 मानकर, उसी तरह का जो है हमारा इदारा जो है दीनी इदारा है। और ये जो है आलिमियत तक की सनद हम देते हैं, नदवे की साख बाकायदा है ये, और उस दीनी तालीम के एतबार से उसके साथ साथ हम जब आलिमियत जब तक लड़की की होती है उस टाइम तक हिंदी इंग्लिश सिखाते हैं, यानी दूसरी तालीमें सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है। अब इसमें जरा सी एक बात समझने की है कि पढ़ाने का मतलब ये है कि हमने दूसरी क्लास का कोर्स पढ़ा दिया है, चौथी क्लास का या छठी 8वीं क्लास का कोर्स पढ़ा दिया तो हम उसका सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन हमारे पास मान्यता नहीं है। वो अगर सर्टिफिकेट दे दे और उसे सब मान लें तो मानो कि हम उसे पढ़ा रहे हैं। तो और अगर नहीं तो मेरे नजदीक हम उसे हिंदी इंग्लिश और दूसरी तालीम सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। हाँ, ये बात है कि जब लड़की की उम्र के एतबार से बालिग होती है या वो जो है हमारा आखिरी साल होता है अलिमत का, तो हम 9वीं क्लास में ये जैसे सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, ओपन से उनका दाखिला कराते हैं। और जब वो जो है आलिमा हो जाती है फिर जो है 10वीं का बाकायदा इम्तिहान देते हैं। उसके बाद जो है दूसरी तालीम पे ज्यादा जोर देते हैं, असली तालीम पे। और बीए सेकेंड ईयर तक हमारे पास जो है अब वो चौथे सेमेस्टर का इम्तिहान चल रहा है, एक पर्चा बाकी है बीए सेकेंड ईयर तक। अल्लाह का शुक्र है उसमें जो है अब तक के बैच में जो सनदें हमारे पास हैं और जो हमारी बच्ची फारिग हुई हैं, सबसे कम जो है अब तक पूरे रिजल्ट में 63% नंबर है, और ज्यादा से ज्यादा 86% नंबर जो है गवर्नमेंट ने हमें हमारे बच्चों को दिए हैं। यानी अल्लाह का शुक्र है, कभी 3rd डिवीजन किसी एक बच्चे की भी नहीं रही, 2nd डिवीजन और 1st डिवीजन सबकी है, अल्लाह का शुक्र है। और इंदिरा गांधी, अब हमने ये फैसला लिया है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है उससे जो है हम बाकायदा बच्चों की तैयारी कराते हैं और करा रहे हैं। और इस साल भी दाखिले शुरू हैं। अगर किसी भाई को जो बच्ची इंटर कर चुकी हो और वो चाहता हो कि भाई हमारी दीनी माहौल में रह के बच्ची हो तो वो दाखिला करा सकते हैं, और हमारे बच्चों का रिजल्ट अल्लाह का शुक्र आकर देख सकता है। ऐसी नहीं है बात कि भाई हम ऐसी जवानी कह रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने जो सनद दे दी है वो तो मानी जाएगी और बच्चों से भी बात कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है। एक थोड़ा सवाल
जी, बच्चे को आप असली तालीम की ओपन या इग्नू यूनिवर्सिटी आप जब तैयारी करा रहे हैं, हाँ। इनको तैयारी कौन कराता है? इसके लिए अलग आपने टीचर रखे हैं या क्या? नहीं, हमारे पास जो है अल्लाह का शुक्र है 3 टीचर जो है बाकायदे टीचर है, और उनकी देख रेख में वो ही जो है घंटे पढ़ाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है वो अच्छे लोग हैं हमारे साथी, और बाकायदा क्वालिफाइड है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, और एक तो बल्कि MA BEd है हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है वो क्वालिफाइड जो है 3 टीचर हमारे पास है। छोटा सवाल ये है मौलाना साहब कि आप ये इदारा चला रहे हैं, तो यहाँ उलमा की आमद रफ्त है? उलमा की आमदरफ्त का जहाँ तक ताल्लुक है, अल्लाह का शुक्र है इसकी बुनियाद जो है वो हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब ने क्या दस्ते मुबारक से रखी गई है। और वो जहाँ तक बड़े बड़े उलमा की बात है, इस जगह पर बस जगह जब तो ये क्लियर नहीं थी, नहीं तो मौलाना सलमान साहब और मौलाना राशिद साहब कांगड़ी एक मरतबा जो है गए थे, एक पंचायत हो रही थी तो कादियानी से ताल्लुक से अकीदे के मुताबिक उसमें, और मौलाना गुस्तानवी साहब ने जो ये हाथ आपने देखा होगा जिसमें हमारे प्रोग्राम होते हैं उसकी बुनियाद उन्होंने रखी मौलाना गुस्तानवी साहब ने। और जी मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब तो 12 आए हैं, मौलाना नजरुल हफीज साहब आए हैं, मौलाना जकरिया साहब आए हैं, और दूसरे बुजुर्ग वो अल्लाह का शुक्र है बहुत जो है दूसरी जगहों से हैं। हजरत मौलाना हारून साहब भी आते रहते हैं, मौलाना बस अभी तक जो है इस जगह पे वैसे तो ईदगाह में तो आए हैं, लेकिन जब तक नहीं था, नहीं तो गुड़िया पीर जी खूब अच्छी तरह जानते हैं, हमारे हालात से हर एतबार से वाकिफ हैं। हजरत मौलाना रावी साहब इसमें जो है 2004 में आए थे, जब दुआ की थी। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है कि कभी बुजुर्गों की आमद से हम खाली रहे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है बुजुर्गों की दी निगरानी में बराबर हमारा उनसे होता है, ये इसकी हकीकत है बुजुर्गों की। मौलाना रफाई साहब, हाँ आपने देखा, आपने सफर भी किया है, मौलाना मुस्तफा रफाई साहब आए हैं, और बहुत सारे अल्लाह का शुक्र है। सवाल ये है कि बच्चों का आप इदारा चलाते हैं, आपके पास इनका जरिया चलाने का, इनकम का, आमदनी का क्या जरिया है? मौलाना देखो ये फिर वो बात कहनी पड़ेगी, ये बड़ा सख्त सवाल है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम कमी जाती नहीं करते हैं, और अल्लाह ने हमें बचाया है कि हम कोशिश करते हैं कि कोई अल्फाज ऐसा ना लिख दे कि जो झूठ साबित हो। जैसा कि हजरत मौलाना खलीम साहब भी मानते हैं, उन्होंने लिखा भी है बहुत सारी जगह कि लेके सोनीपत से पंजाब, हरियाणा, लुधियाना और जो है हिमाचल में जितने इदारे अभी तक हजरत मौलाना करीम साहब से जुड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हमारा जो है उसमें कुछ न कुछ हिस्सा है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे से पहले जो है किसी को नहीं, मेरे पंजाब में भी मुझे भेजा गया था और हिमाचल में भी पहली बार मुझे ही भेजा गया था। तमाम इदारे जो हैं, मैं ये खुद ही नहीं कह रहा, मौलाना करीम साहब ने लिखा भी है कई जगह, और है सच्चाई यही कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में जितने हजरत मौलाना करीम साहब से इदारे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह आखिरत में उसे में हमारा भी हिस्सा जरूर होगा, यकीनन ये है। तो जहाँ तक इसकी बात है वो कुछ हमें ये महसूस हो रहा है, अपने दिन की हम बात कहें कि एक तरह से ये कहा जाए, क्योंकि असरी तालीम को लेके और इस निजाम को लेके जो हमने अल्लाह ने हमसे करवाया है, तो इसको लेके ऊंच नीच रही है हमेशा साथियों में जो दूसरी जगहों पे बैठे हैं। और उसकी वजह ये थी, मैं जो समझता हूँ मैं ये कहता हूँ भाई मेरे बच की नहीं और आपको करने नहीं दूंगा। तो इस माना कर जो है इस निजाम से जो है अब तो लोग जो है मजबूरन इत्तेफाक रखने लगे, लेकिन अब से 30 साल पहले अगर देखा जाए तो हमारे साथी जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, ये हमने महसूस किया है, और बराबर हम जो है अगर किसी को एतराज हो तो साबित कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है। खैर बहरहाल जो है ये जो है जो ये है, तो हमारा जो है साहिब खैर हजरात जो हरियाणा पंजाब में जो साहिब खैर हजरात खिदमत कर रहे हैं, उनसे हमारा ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा है। और जिन लोगों का ताल्लुक रहा है वो यहाँ तक बात आई है कि एक निजाम होते हुए एक आदमी से जुड़े हुए बाउंड्री के बीच में सिर्फ दीवार है, तो उन हजरात को जो साहिब खैर हजरात हैं ये हमारे साथी हमें तक लेके नहीं आते। और अपना मिजाज ये है,
अल्लाह मेरे हाल पे भी रहम करे और उन लोगों पे भी कि भाई अल्लाह के भरोसे इदारा शुरू किया है। लेकिन ये बात सच्ची है कि तकलीफ होती है कि जिन लोगों को अल्लाह ने हमें जरिया बनाया बिठाने का, वो लोग हमसे न जाने क्यों हमारे मिजाज खराब है कि वो साहिब खैर हजरात से ना हम मिलाना नहीं चाहते शायद। तो इस वजह से वो दुश्वारी आपने देखी होगी, इदारे में इतनी तंगी है कि जितनी इमारत हमारे पास है उससे 6 गुनी इमारत हमें चाहिए, 6 गुनी। और पर जिन लोगों का ताल्लुक है या तो वो साहिब खैर हजरात तक हमें पहुंचाना नहीं चाहते या हमसे बचा कर। एक सवाल और रह गया, एक और सवाल, तो आप गांव में जाते हैं और वसी साहब के साथ एक मतलब मैं भी आपके साथ दो गया। गांव में आप पंचायत करते हैं बिरादरी सतह पे, कहीं घेर में नीम के पेड़ के नीचे, आखिर उनसे क्या फायदा? देखो उनकी इस्लाह का कोई इसराह का तो जहाँ तक है, जो उस तरह हंगामी काम जो हुआ, वो जो फतूहात हुई है वो तो हुई हजरत मौलाना अली मियां के टाइम, वो उनकी दुआओं का असर था। जहाँ भी हम गए लोगों ने हमारी कदर की और बैठने दिया, हर तरह से जो है। लेकिन हालात बदलते गए, खुसूसन लॉकडाउन के टाइम से पहले जो है, जब तनहा से पड़ गए तो लोगों में एक बार इल्तिदाद की हवा चली थी 2001 में। तो पहले से हजरत कुरान करीम साहब जो है लोगों के घरों में जाके बैठते थे शुरू में। अब तो बिजी ज्यादा हो गए हैं, वक्त नहीं है। तो हमने उनसे ये सीखा है, तो लोगों में देहात में जाते हैं, बैठते हैं। और हमने हजरत मौलाना राबे साहब से एक मरतबा इजाजत ली थी कि हरियाणा पंजाब में चाहे कोई कितना ही बड़ा मौलवी है, तो कितने भी वो करे ना, तो वे लोग अल्लाह वाले के नाम पे जमा होते हैं ना किसी वजह से, और दूसरे उससे जलसे वगैरह में। तो फिर अल्लाह ने हमारे ध्यान में डाला, तो ये पंचायत का सिलसिला हमने शुरू किया था कि भाई बिरादरी सुधार के नाम पे हम जोड़ते थे, और अब भी जोड़ते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद से हालात जैसे बदले हैं, तो अब हम जो है उसका ये लिया है कि हरियाणा में गए गुजरे लोगों में अभी ये 10वां तीजा और इसका जो है रिवाज है। तो अब तो फिलहाल हम ज्यादातर ये कर रहे हैं कि भाई जब कोई मरता है तो वो हमें बुलाते हैं। हमारे लोग हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो हम वो जहाँ भी बैठे रहते हैं उनके पास बैठते हैं, उनमें बैठते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तौहीद की दीन की बात करते हैं, और उसका फायदा ये हो रहा है, आप देखेंगे जाके पूछ लें कि जींद में जो लोग इस वक्त तबलीगी जिम्मेदार हैं या किसी और तरह जिम्मेदार हैं, जींद में है, रोहतक में है, अल्लाह का शुक्र है वो कुछ मुल्क बैठने की वजह से है। और अल्लाह का शुक्र है वो तबलीग में जलसा भी जो बाकायदा चिल्ला दे रहे हैं और लगे हुए हैं, उससे बहुत फायदा महसूस हुआ। वो मदरसों में भी हमारे लोग नहीं भेजते, शुरू में भेजे थे लोगों ने, लेकिन जो उनकी जरूरत थे हम पूरी नहीं कर सकते। सच्ची बात यह है, सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। इस वजह से लोग जिस तरह हमें वो कदर कर रहे थे, हम उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सके। इस वजह से जो पीछे रह गया काम, तो फिर हमने ये पंचायत का सिलसिला अभी भी जारी है, और वो इंशाल्लाह जैसे भी हमें हो सकेगा कानून के दायरे में रहते हैं हम पूरी बढ़ते दम तक कोशिश करेंगे। आपसे भी इसकी दुआ की दरखास्त है, और साथियों से और सामीन से भी ये दरखास्त है कि अल्लाह हमें सलीका भी अता फरमा दे। और मैंने जैसा बहुत सीधे लफ्ज़ों में बतलाया आपको, हरियाणा में जो देहात है वो दूर दराज में है, जहाँ कहीं 5 मुसलमान घर हैं, कहीं 10 मुसलमान हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 20 हैं, ये सूरत हाल है पूरे इलाके में। तो मोहल्ला का एक बड़ा मिशन ये है, ये वहाँ जाते हैं, वो सख्त अंदाज में 2-3 आदमी होते हैं, और बिरादरी सतह पे समाजी सतह पर उन लोगों को नीम के पेड़ के नीचे कहीं छप्पर में कहीं बैठ जाते हैं, और कहीं जनाबी नमाज में, कहीं शादी में जाकर समाज सुधार काम करते हैं। हरियाणा की सबकी वोट का काम आप देना चाहिए। बस ये है जी, दोनों ही तबके से जो साहिब खैर हजरात हैं, जरा वो भी हमारी तरफ रुख करें, और जो दीनदार और हमारे जिम्मेदार लोग हैं वे भी इस खित्ते के लिए जो है दुआ भी करें, जो मुमकिन हो ताउन करें। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल कर ले और आखिरत में हश्र के मैदान में काम आ जाए, ये दरख्वास्त है इसकी दुआ। माशाल्लाह मौलाना इंटरव्यू पूरा हो गया है।
معلوم کہ آپ نے